Bismillahirrahmanirrahim. Here is Mobeen Nas. I'm from MK Preparations, and today we will discuss about Kingdom Plantae. So, dear students and candidates, this topic is very much important, and you can prepare it for the preparation of different competitive exams like Punjab Public Service Commission, PPSC, and Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission, KPPSC, Sindh Public Service Commission, SPSC, Balochistan Public Service Commission, BPSC, and Federal Public Service Commission, FPSC. So the material coded in these slides have been taken from different source books, which include F.Sc. Biology, Federal Biology, Campbell Biology, Botany Paper A book, and Riazul Haq Rame book. Okay, so this topic is very much important. Most of the material have been taken from the F.Sc. Biology, Federal Biology, Campbell, Botany Paper A book, and Riazul Haq Rame book. Okay, so the contents that we'll discuss in this topic includes the main characters of the kingdom Plantae. Okay, the Bryophytes, alternation of generation, then Bryophytes adaptations to the land, Bryophytes classification, Tracheophyta, classification of Tracheophyta, class Felicini, evolution of leaf, evolution of seed, class Gymnosperm, class Angiosperm, and double fertilization. So one by one we'll discuss about these contents. So first of all, let's discuss about the main characters of the kingdom Plantae. So first of all, the kingdom Plantae के main characteristics हैं. These include about 360,000 species. Kingdom Plantae की 360,000 species हैं, and the plants are eukaryotes. Okay, and they are autotrophs. They can synthesize their own food, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है. ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ हैं, अपनी फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग द सनलाइट एंड बाय ट्रैपिंग द कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ द प्लांट बॉडी इज मल्टीसेलुलर एंड द प्लांट्स आर नॉन मोटाइल. ठीक है, प्लांट्स जो हैं वो नॉन मोटाइल हैं. ये अपनी जगह तो चेंज नहीं कर सकते हैं, बट दे कैन चेंज देयर डायरेक्शंस. ओके, इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुलाई. So plants develop from the embryo because इनमें भी जो है वो zygote बनता है by the fusion of the pollen grains and the ovule. ठीक है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. तो प्लांट्स की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, दैट इज मेड अप ऑफ दी सेलुलोज. सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम Plantae. Okay, now this one is the classification. This one is the general sketch. The first class or the division of the Plantae, kingdom Plantae, is Bryophyta. तो Bryophyta जो है, these are non-vascular plants, यानी इनके पास किसी किस्म की वेस्कुलर बंडल्स नहीं है, जाइलम और फ्लोएम नहीं है. ठीक है, फिर इनकी ये 3 सब डिवीजन हैं, इनको हम डिटेल में अलग अलग डिस्कस करेंगे. देन सेकंड डिवीजन है जी ट्रैकियोफाइटा. तो जो ट्रैकियोफाइट्स हैं, they are vascular plants. They are having the true xylem and phloem. Then इनकी भी फर्दर हमारे पास कुछ डिवीजन्स हैं, एंड देन उनकी फर्दर 3 क्लासेस हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी. ठीक है, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे डिटेल में विद देयर लाइफ साइकिल्स. ओके जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दी डिवीजन ब्रायोफाइटा, इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रायोफाइट्स हैं, दीज आर नॉन वास्कुलर प्लांट्स. ओके, इनके पास किसी किस्म के कोई वास्कुलर बंडल्स नहीं है, जाइलम या फ्लोएम नहीं है. तो इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है ब्रायोफाइट्स का? These are the first plants to be colonized over the land. Okay, they thought to be evolved from the green algae. तो इनके ओरिजिन को हमने देखा कि ये फर्स्ट प्लांट्स हैं जो कि लैंड के ऊपर इवॉल्व हुए, और ग्रीन एल्गी से इनका ओरिजिन हुआ. Now the second one is habitat.
So जो plants हैं, they are poorly adapted for life over the land. They are present over the damp places, shady areas. Okay, यानी ये कुछ shady और damp places जो नमदार जगह होती हैं उनको prefer करते हैं bryophytes. ठीक है, क्योंकि ये lesser plants कहलाते हैं. Shady areas जो सायादार जगह हैं उनको prefer करेंगे. And these are low profile plants. Okay, poorly developed इनकी characteristics होती हैं. Then these are the amphibious plants. इन्हें हम amphibious plants भी कहते हैं because हमें पता है कि amphi का मतलब होता है two. Okay, जैसे हमारे पास amphibians होते हैं, animals होते हैं, they can live on land as well as in water. So similarly, जो bryophytes हैं, they can also they are actually water dependent. ठीक है, ये land पे तो रहते हैं लेकिन जमीन पे ये damp places को यानी जो नमदार जगह होती हैं उनको प्रेफर करते हैं. ठीक है, शेडी एरियाज को और डैम प्लेसेस को. So that's why these are known as the amphibious plants. Means they are said to be amphibians of the plants because they do not grow away from the water and need water for their development and reproduction. तो इनको अपनी डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए भी वाटर की जरूरत पड़ती है फॉर द मूवमेंट ऑफ देयर गैमीट्स. ओके, सो नाउ द डिवीजन ब्रायोफाइटा. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसके हम देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं. तो वेस्कुलर टिश्यूज हैं हमारे पास. सेकंड, वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं. ब्रायोफाइट्स लैक द वेस्कुलर टिश्यूज लाइक द जाइलम एंड द फ्लोएम. And we know that the xylem is involved in the uptake of water from roots to the aerial parts of the plants, and phloem is involved in the transportation of the food synthesized in the leaves to the storage organs. So the for conduction of the water and food diffusion is the main mechanism. And next is the cuticle. So it is the waxy layer which help conservation of water. तो bryophytes में ये waxy layer भी present होती है, cuticle. ठीक है, ताकि ये water को conserve कर सकें. And plant body of the bryophytes may or may not have cuticle. Even some have thin cuticle. Okay, सो कुछ में हो भी सकती है क्यूटिकल, कुछ में एब्सेंट भी हो सकती है और कुछ में वेरी करता है, थिन क्यूटिकल भी प्रेजेंट हो सकती है. ओके, नेक्स्ट इज द वाटर एब्जॉर्प्शन. तो वाटर एब्जॉर्प्शन को अगर हम देखें, इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एंटायर बॉडी सरफेस ऑफ द ब्रायोफाइट्स. नाउ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जी ब्रायोफाइट्स की और डिफरेंट प्लांट्स की. सो ब्रायोफाइट्स आर डाइमॉर्फिक. डाइमॉर्फिक मीन्स कि इनकी जो है वो दो शेप्स होती हैं या दो जनरेशंस होती हैं. ठीक है, दीज आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, दीज आर फ्लावरलेस प्लांट्स एंड दे शो अ रेगुलर हेट्रोमॉर्फिक बिकॉज वी सेट के ये डाइमॉर्फिक है. इनकी दो तरह की जो है वो जनरेशंस होती हैं. तो जो दोनों जनरेशंस हैं दे आर गोइंग टू अल्टरनेट विद ईच अदर. ठीक है, और इसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. और इन जनरेशन के क्या नेम्स हैं एंड क्या इनमें डिफरेंसेस हैं, इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे. Okay, ji. So these were the general characteristics of the bryophytes. Now, we'll discuss about the alternation of generation that is very most or much important. Okay. So first of all, what is alternation of generation? It's a process during which a gametophyte or haploid gamete forming generation alternates with the sporophytic diploid spore forming generation and vice versa. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो generations हैं. The first one is the gametophyte and the second one is the sporophyte. Okay, so ये जो दो तरह की generations हैं, as you can see here, gametophyte, ठीक है, ये haploid है. इसमें जो gametophyte के cells हैं ये haploid होते हैं. और सेकंड है स्पोरोफाइट, इसके सेल्स जो हैं ये डिप्लॉयड हैं. अच्छा जी, अब हमारे पास जो हैप्लॉयड गैमीटोफाइट है वो माइटोसिस के प्रोसेस के जरिए से गैमीट्स को बनाएंगी. बिकॉज नेम ही शो कर रहा है गैमीटोफाइट, तो नेम से ही इसको आप रिमेंबर कर सकते हैं. गैमीटोफाइट मींस गैमीट फॉर्मिंग जनरेशन and this generation is itself haploid, so it will make the gametes by the process of mitosis. So from haploid gametophyte, the haploid gametes will be formed by the process of mitosis. Okay, and then these gametes are going to fuse with each other during the process of fertilization, so they will form the diploid zygote. Now this diploid zygote will get mature into the sporophyte, because we know that sporophyte is diploid. So now from the sporophyte, the spores, haploid spores, will be synthesized by the process of meiosis, because we know that meiosis is a reduction division. So in this case, the haploid spores will be synthesized here. Okay, and the chromosome number will be reduced to half.
So haploid spores are now going to be matured into the haploid gametophyte. Okay. So next is the significance of alternation of generation. अगर हम importance को देखें, so it's a continuous source of the genetic variation. इससे genetic variation आती रहती है because we know that कि हमारे पास जो haploid gametophyte है, माइटोसिस के जरिए उसमें haploid gametes बने हैं, but haploid gametes की further fusion हो गई है. It means next जो sporophyte बनेगी, it's going to be genetically vary. Okay. एंड सिमिलरली जो हमारे पास स्पोरोफाइट है उसमें मियोसिस के जरिए ही हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं. सो from the haploid spores, next one is the haploid gametophyte. So in this case, the genetic variation also occurs. So it helps in the survival of the species, it helps in adapting the changing environment, and it also helps in evolution. These are all points related to the significance of alternation of generation, because we know that if there is some kind of genetic variation in the animals, then the animals or the plants having more genetic variations, they can survive better in the environment. Okay, so they can lead to the evolution of the new species as well. Okay ji, so it offers a natural selection and survival of the fittest, because if the organisms are going to have the genetic variations, and the nature will select the organisms with the better genetic makeup. Okay, so in this case there is the survival of the fittest. So now we'll discuss about the gametophyte and sporophyte separately, because these are the two generations, the gametophyte and the sporophyte. So first of all, gametophyte. Okay, ji. So gamete producing generation is called the gametophyte, and it is haploid. Yeah, we have just gone through it. And this one is dominant, independent, and free living generation. Okay, तो gametophyte के बारे में एक most important characteristic ये भी है. हमने इसको ये भी देख लिया कि ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा ये कि either it's going to produce the spores or the gametes. So इसके नेम से हमने जो है वो शो करवा दिया कि नेम ही इसका हमें मेमोराइज करवा सकता है इजीली दैट इट्स अ गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन. ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट है, ये दूसरी जनरेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, खुद से अपनी फूड को सिंथेसाइज ये कर सकती है. ओके ओके, सो देयर आर टू बॉडी फॉर्म्स ऑफ द गैमेटोफाइट्स. तो गैमेटोफाइट दो तरह की फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है. इट मे बी थैलस, नॉट डिफरेंशिएट इनटू द रूट स्टेम एंड लीव्स. तो थैलस एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स. ओके, and the second form is it might be differentiated into the root stem and leaf like organs. So दो फॉर्म्स में गैमेटोफाइट एग्जिस्ट कर सकती है, या तो थैलस की फॉर्म में होगी या फिर प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड होगी इन रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द स्पोरोफाइट. ओके, तो स्पोरोफाइट जो है इट्स अ स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन एंड इट्स लेस कंस्पिकुअस. नाउ लेस कंस्पिकुअस का मीनिंग होता है कि कम वाजिया है ये, ठीक है. जैसे हमने पढ़ा था कि गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, मतलब वो ज्यादा वाजिया है, ज्यादा ऑब्वियस है. तो इसी तरीके से स्पोरोफाइट उसके बदले में लेस कंस्पिकुअस है, या फिर आप कह लें कि ये डोमिनेंट नहीं है, ठीक है. एंड इट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड होती है. It produces haploid spores by the process of meiosis. Okay, and it is partially or completely dependent over the gametophyte. So sporophyte की characteristic होती है कि sporophyte gametophyte के ऊपर dependent होती है because it can't photosynthesize. Okay, and plant body is divided into the foot, seta and capsule. तो जो sporophyte है हमारे पास उसके तीन parts होते हैं. The first one is the foot, then is the seta, this entire one is the seta, and last one is the capsule. ठीक है, और इस capsule में ही फिर स्पोरेंजिया वगैरह जो है वो डेवलप हो रहे हैं. ओके जी, सो दे आर होमोस्पोरस. अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स में एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं सारे, ठीक है, और दैट्स वाई जो स्पोरोफाइट है इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स ये होमोस्पोरस हैं. ओके, एंड स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स. या वी स्टडीड अबाउट दैट इन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. अगेन दे प्रोड्यूस द स्पोरोफाइट over gametophyte and the life cycle continues. Okay ji. So now are the reproductive organs. So reproductive organs क्या है जी हमारे पास, अगर हम देखें गैमेटोफाइट को तो गैमेटोफाइट में दो तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ओके, तो जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं गैमेटोफाइट में,
उनको स्पेसिफिक नेम्स दिए गए हैं, तो हम वही स्टडी करेंगे कि जो गैमेटोफाइट होती है उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं. Okay, and these organs are going to make the gametes by the process of mitosis. Okay, so these sex organs are known as the antheridia and archegonia. तो अब हम one by one इनको देखते हैं, antheridia और archegonia. So antheridia, these are the male reproductive organs and they are going to produce the antherozoids, or you can say the sperms, or these are motile. Okay, so antherozoids are motile. Okay, so these are just like the sperms. Then the next one is archegonium. So archegonium is the female reproductive organ. Okay, so it will produce the single egg, and by the process of mitosis. And this egg is always sessile. It means the eggs cannot move. Okay, they are retained within the archegonium. So now, what is paraphysis? Sometimes these antheridia and archegonia are going to mix up with the sterile hairs, so they will form the structures that are known as the paraphysis. Okay, so let's define that. These are the sterile hair-like structures found around the sex organs of the biophytes that involved in the protection of these sex organs from the desiccation, light, temperature, and mechanical injuries. यानी एक cluster होता है हमारे पास sterile hairs का, as you can see here. For example, these are the hairs. Okay, ये सारे hairs हैं हमारे पास, ठीक है. Sterile hairs हैं, means ये reproduction में कोई भी role perform नहीं करते. और these are the archegonia. Okay, तो आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मिक्सअप है, यानी यहाँ पे क्लस्टर बना हुआ है स्टेराइल हेयर्स का अराउंड दीज आर्चिगोनिया. तो ये जो स्टेराइल हेयर्स हैं ये इन आर्चिगोनिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम द लाइट, डेसिकेशन, टेम्परेचर एंड मैकेनिकल इंजरीज. So that's why this entire structure is known as the paraphysis. Okay. Now fertilization. So we know that antheridia and archegonia, they are going to make the male and the female reproductive cells or the gametes. So after that, the gametes are going to be released in water. The male gametes will be released in water and they will float and will enter in the female reproductive part or female reproductive structures. That is archegonia, where the male gamete will fertilize the female gamete, that is ovule. Okay, so fertilization takes place in water. And antherozoids swim towards the archegonia by chemotaxis. For example, this one is antherozoid, this one is archegonia. तो यहाँ से जो स्पर्म्स रिलीज होंगे they are going to flow towards the archegonium और यहाँ से एंटर होंगे ओव्यूल को जाके फर्टिलाइज करेंगे. ओके, नाउ द एम्ब्रियो फॉर्मेशन. तो जाइगोट की जब सिंथेसिस हो जाएगी आर्चीगोनियम में, नाउ ये जाइगोट विद इन दैट आर्चीगोनियम ही सर्वाइव करेगा और रेस्टिंग कंडीशन के बाद इट विल कंटिन्यू द डिवीजन. ओके, so embryo divides and forms the sporophyte. We know that from the gametophyte, now next stage that is going to be synthesized, this one is the sporophyte. Okay, so sporophyte development takes place within archegonium. From the above discussion, the bryophytes can be defined as the plants with the vascular system absent, gametophyte dominant, sporophyte attached, and homosporous. तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, कलेक्टिवली आप कह रहे हैं ये एक स्टेटमेंट है जिससे हम बता सकते हैं ओवरऑल ब्रायोफाइट्स के बारे में कि इनमें वास्कुलर सिस्टम एब्सेंट है. दीज आर नॉन वेस्कुलर, गेमेटोफाइट डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट लेस कॉन्स्पिकुअस है, एंड दे आर होमोस्पोरस प्लांट्स, मींस सेम टाइप ऑफ स्पोर्स इनमें बन रहे हैं. ओके, सो now there are some adaptations of the bryophytes to the land habitats. So what are these adaptations? The first one is reduced surface area. तो जो हमारे पास bryophytes हैं उनका surface area बहुत reduced है. As you can see here, ये bryophytes grow किए हुए हमें दिखाई दे रहे हैं. तो इनका surface area जो है वो reduced है ताकि ये water को conserve कर सके अपनी body में. नेक्स्ट वन इज द प्रेजेंस ऑफ द क्यूटिकल. ठीक है, तो पूरी प्लांट बॉडी के ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग है टू अवॉइड द लॉस ऑफ वाटर. नेक्स्ट वन इज द फोटोसिंथेटिक टिश्यू. तो जो फोटोसिंथेटिक टिश्यूज हैं वो स्पेशलाइज्ड चैम्बर्स में प्रेजेंट होते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकें विदाउट लूजिंग मच वाटर फॉर द फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट वन आर द राइजोइड्स. तो इनमें राइजोइड्स प्रेजेंट होती हैं ताकि ये जो है वो किसी भी सरफेस से, सॉइल की सरफेस से अटैच हो सकें, सॉइल पे में अटैच हो सकें और वाटर को जो है वो इन राइजोइड से एब्जॉर्ब कर सकें. ठीक है, नेक्स्ट वन हेट्रोगेमी. सो वी नो दैट इनमें डिफरेंट तरह के जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं.
गेमिटोफाइट में 2 डिफरेंट तरह के सेक्स ऑर्गन्स हैं, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, और वो डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स बनाती हैं। ओके, एंड सेक्स ऑर्गन्स हैं इनमें एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। Embryo retention है, so in plants this one is also the general characteristic of the entire plants, that they can retain the embryo within the parent body, ताकि उसको प्रोटेक्शन मिले और वो डेवलप हो सके स्पोरोफाइट में। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, ताकि ये जो है वो एक लैंड का जो वर्सटाइल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है उसमें सर्वाइव कर सकें। ठीक है, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन से अल्टरनेट होती रहे डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन। So these were all the adaptations of the bryophytes to the land habitats, okay? And these adaptations are very, very much important. Okay, ji. So now we are moving towards the classification of the bryophytes. So there are three main classes of the bryophytes: the Hepticopsida, that are known as liverworts; the Bryopsida, that are known as moss plants; Anthoceropsida, that are known as hornworts. So one by one अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज हेपेटिकॉप्सिडा यानी लिवरवर्ट्स। ठीक है, तो लिवर की जैसी शेप होने की वजह से इन्हें लिवरवर्ट्स कहा जाता है। तो जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज गेमिटोफाइट। ओके, गेमिटोफाइट इज थैलॉइड स्ट्रक्चर, मींस ये फ्लैट और रिबन लाइक होती है। ठीक है, and it is attached to the soil by means of rhizoids. Rhizoids root like structures हैं, उनकी हेल्प से इस soil के साथ अटैच होती हैं। Other species tend to grow upright and are falsely leafy, means they might be differentiated into the false stem and leaves. यानी कुछ जो हमारे पास गेमिटोफाइट्स हैं, कुछ लिवरवर्ट्स की जैसे मार्केंचिया है, तो इनकी गेमिटोफाइट थैलॉइड है, लेकिन जो पोरेला है ये भी एक स्पीशी है हेप्टिकॉप्सिडा लिवरवर्ट्स की। इनमें जो गेमिटोफाइट है दिस वन इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीव्स। ओके, so sporophyte is dependent on the gametophyte, and the sex organs are anthridiophores and the anthridia and archigonia, and they develop on the tips of special branches that are known as anthridiophores and archigoniophores. Okay, ji, so the next one is the Bryopsida or the moss plants. So gametophyte is differentiated into the structures that resemble stem and the leaves. तो इनके जो gametophyte है, तमाम moss plants की gametophyte properly differentiated होती है stem और leaves में. Okay, so rhizoids are also present, and examples of the Bryopsida includes the Funaria and Polytrichum. Okay, तो ये जो हमें diagram में show किया गया है, this one is the Polytrichum. And Archigonia and Anthridia develop on the tips of different branches on the same plant, okay, like in Funaria, and on the different plants like in Polytrichum. तो Funaria में जो हमारे पास tips of different branches on the same plant, के same plant पे ही different branches के ऊपर Anthridia और Archigonia present होंगे, लेकिन Polytrichum में different plants हैं हमारे पास जिनमें different branches पे जो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया है, दीज आर प्रेजेंट। उसके बाद हमारे पास पैराफिसिस है। पैराफिसिस की कैरेक्टरिस्टिक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इन विच द स्टेराइल हेयर्स आर गोइंग टू मिक्स अप विद द एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। देन इन केस ऑफ मॉस प्लांट्स, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि प्रोटोनिमा डेवलप हो जाता है। ठीक है, जो स्पोर है हमारे पास मोस प्लांट्स का, जो स्पोरोफाइट से स्पोर बनेगा, this spore is not directly being converted into the gametophyte, but first of all it will be converted into an algal like structure that is known as the protonema. Then protonema के ऊपर bud की formation होगी, and then उस bud से फिर जो है वो then gametophyte की synthesis होगी। okay, ये हमारे पास life cycle है Bryopsida का। So as you can see here the male and the female plants. तो male plant पे Anthridia, female plant पे Archigonia. Okay, so these are the sex organs of the gametophyte. Then जो हमारे पास motile sperms हैं from Anthridia, they are going to fertilize the eggs of Archigonia, and inside the Archigonia zygote will be formed, embryo will be formed, and then sporophyte will be synthesized. Now from the sporophyte there is a sporogonium in which the spores will be synthesized by the process of meiosis,
and now these spores are going to develop into the protonema. This one is algal like structure. Protonema के ऊपर एक bud develop होगी. Now this bud is going to separate and being converted into the gametophyte. Okay. So the last one is Anthoceropsida. So these are the hornworts. Okay. So why these are known as the hornworts? यानी कांटों की तरह के structures होते हैं इनके पास. That's why इन्हें हम hornworts कहते हैं. As you can see here in the diagram. Okay. तो जो इनकी gametophyte है, this one is lobed, highly lobed structure. Okay. And sporophyte is not dependent upon the gametophyte. तो ये most important characteristic है इन केस ऑफ एंथोसिरोप्सिडा कि इनकी स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती. ठीक है. एंड एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर संकन इन द गेमिटोफाइटिक टिश्यू. तो जो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया है वो गेमिटोफाइटिक टिश्यू में संक यानी अच्छे तरीके से डूबे हुए हैं. आप कह लें बहुत डिप्रेशन में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. एंड स्पोरोफाइट हैज स्टोमेटा एंड क्लोरोप्लास्ट्स. ठीक है. जो स्पोरोफाइट है इनकी वो डिपेंडेंट क्यों नहीं है गेमिटोफाइट पे? बिकॉज इट्स हैविंग इट्स ओन क्लोरोप्लास्ट्स. ओके. इसके पास अपने क्लोरोप्लास्ट्स हैं ताकि फोटोसिंथेसिस कर सके और अपने स्टोमेटा है. ओके. सो इट ऑल्सो हैज अ वेक्सिक्यूटिकल ताकि जो वाटर लॉस है उसको बचाया जा सके. एंड एट द जंक्शन ऑफ द फुट एंड द स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन there is a band of meristematic tissue. Meristematic tissue एक ऐसा टिश्यू होता है that has capability to divide, ताकि वो डिवाइड हो और स्पोर जो है वो उसकी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू होती रहे. ठीक है. तो यू कैन सी हियर ये हमारे पास जो है ये गेमिटोफाइट है. ठीक है. ये हाईली लोब स्ट्रक्चर है गेमिटोफाइट का. देन दिस वन इज द स्पोरोफाइट, फुट, सीटा एंड कैप्सूल. और ये जो हमारे पास सीटा और फुट है इसके बेस पे इसके जंक्शन पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है. ठीक है. So now we are moving towards the second division, that is Bryophyta. Okay. Now Tracheophyta. So the division Tracheophyta. These are the vascular plants. Tracheo means vascular and phyta means plants. So these are the vascular plants having the xylem and the phloem. These are the plants with xylem and phloem. Okay. Okay, so they are successfully adapted plants because of evolution in their vegetative characters and reproductive characters. Okay. And among these plants, only plants belonging to the flowering plants are successful due to the following characters. So these are the main characteristics of the Tracheophyta, or you can say the vascular plants. इनके पास ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स हैं. ठीक है. वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है रूट में और स्टेम में और लीव्स में. सीड्स जो हैं इनकी इवोल्यूशन हुई है ट्रैकियोफाइटा में. पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट हुई है ट्रैकियोफाइटा में. There is the formation of fruits and flowers in Tracheophyta, and there is heteromorphic alternation of generation in Tracheophyta. This characteristic is just like the Bryophytes. Okay, so these are the most important characteristics of the Tracheophyta. Now we are going to discuss about the subdivisions of the Tracheophyta. So the first one is Psilopsida. ओके. हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट सब डिवीजन है साइलोप्सिडा है और इसमें जो एग्जांपल्स हैं प्लांट्स की इंक्लूड्स द साइलोटम एंड राइनिया. देन इज द लाइकोप्सिडा. सो एग्जांपल इज सिलेजिनेला. देन इज स्पिनोप्सिडा एंड द एग्जांपल इज एक्विसेटम. देन इज टेरोप्सिडा, and Pteropsida is further divided into three classes. Class Felicini, which includes the Adiantum. Class Gymnosperm, which include the pinus plant. Class Angiosperm, which includes the Hulab. Okay. So first of all, we'll discuss about the Psilopsida. The examples of Psilopsida are Xylotum and Rhinia. Okay. So these are having rootless sporophyte, and the stem is differentiated into the underground rhizome and एरियल पार्ट. यानी इनका जो स्टेम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक तो अंडरग्राउंड राइजोम है जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है. राइजोम से ही एक्चुअली रूट्स या राइजोइड्स जो है वो डेवलप होंगी. और एक एरियल पार्ट है. ठीक है. तो अगर हम राइजोम को देखें तो राइजोम बियर्स द राइजोइड्स दैट आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर्स. और जो एरियल पार्ट है
Aerial part is containing the green and leafless and small veinless outgrowths. Okay, and the gametophyte is thalloid. It is colorless and underground. And most of the representatives of this group have become extinct. यानी जो members इस group के extinct हो चुके हैं. It includes the Horneophyton, Xylophyton, Cooksonia. Okay, and then examples include the Xylotum T. Now, next one is the Lycopsida, which includes the Selaginella species. Okay, so their sporophyte is differentiated into the root, stem, and leaves. And the leaves are small and single-veined that are known as microphyls. Micro means small and phylls mean leaf, means these are small leaves, okay? The sporophyte may have sporangia of one kind as in Lycopodium or of two kind as in Selaginella. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लाइकोप्सिडा की, ठीक है। एक तो लाइकोप्सिडा में, इसके अलावा एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, इन सब में दो तरह के स्पोरेंजिया और दो तरह के ही स्पोर्स होते हैं। इसके अलावा आप जितने भी प्लांट्स देख रहे हैं ब्रायोफाइटा में और ट्रैकियोफाइटा में, दे आर ऑल हैविंग सेम टाइप्स ऑफ द स्पोर्स, ओके। All of these plants are homosporous, but the plants including in Lycopsida, in Angiosperms and Gymnosperms, these are the heterosporous plants, okay. So Lycopodium, ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है लाइकोप्सिडा की स्पीशी है ये, ठीक है। तो इसमें जो स्पोरेंजिया हैं वो सेम टाइप के ही हैं, सो मीन्स लाइकोपोडियम होमोस्पोरस है। लेकिन जो सिलेजिनेला स्पीशी है लाइकोप्सिडा की, इसमें दो तरह के स्पोरेंजिया और दो तरह के ही स्पोर्स हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोरेंजिया से मेगास्पोर्स डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये हेट्रोस्पोरी की कंडीशन लाइकोप्सिडा में पाई जाती है। सो गैमेटोफाइट इज मेनली अंडरग्राउंड। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्पिनोप्सिडा। इन्हें हम एक्विसेटम या आर्थ्रोफाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। एक्वी का वो जो वर्ड है कि एक्वस से डिराइव हुआ है, यानी हॉर्स लाइक। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो हॉर्स की टेल की तरह का होता है, उसमें जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई इनको आर्थ्रोफाइट्स भी कहा जाता है। तो एज यू कैन सी है, यहाँ पे एक प्लांट बना हुआ है, जॉइंटेड प्लांट है ये, ठीक है। जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जस्ट लाइक द शुगर केन, जिस तरह से शुगर केन का जो प्लांट है उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जॉइंट्स हैं, और प्लस आप देख सकते हैं ये जो जॉइंट वाला रीजन है, यहाँ से लंबी लंबी ब्रांचेस यानी इनके लीव्स राइज हो रहे हैं, दैट्स वाई ये जो इनकी अपीयरेंस है, इट्स लाइक द हॉर्स टेल। तो इन्हें एक्विसेटम का नाम दिया गया है इनकी स्पीशी को। और आर्थ्रोफाइट्स हैं, आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड और फाइटा मीन्स प्लांट्स, सो दीज आर जॉइंटेड प्लांट्स, ओके। So the sporophyte is differentiated into the root, stem, and leaves, and the leaves may be expanded or scale-like, as you can see here in the diagram. And body is composed of large number of joints, okay. And the gametophyte is thalloid. Now, Pteropsida. So Pteropsida is the first class of Pteropsida is class Felicini, and the example includes the Adiantum. तो इसको हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे Felicini और Adiantum के लाइफ साइकिल को, ठीक है। So first of all, the class Felicini, इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये हैं कि these are seedless plants, okay. So Felicini, इनको हम ferns भी कहते हैं। So these are seedless plants with foliar sporangia. तो इसका मतलब क्या होता है जी, sporangia attached to the fronds, okay. Sporangia are attached to the fronds, के जो sporangia हैं ये fronds के साथ attach होते हैं, ठीक है। leaves के साथ attach होते हैं, and the leaves are called the fronds, and when the frond is immature and young, it is coiled. This pattern of development is called the cercinate venation, okay, vernation. तो यहाँ पे हमारे पास जो leaves हैं, these leaves are known as the fronds. ये fronds जब young होते हैं तो इनका इस तरीके से coiled structure होता है। इस pattern जो है इनका coiled structure बनाने वाला pattern, this one is known as the cercinate vernation, okay. So when these fronds are immature and young, so ये coiled हैं और इनका ये जो pattern है coiled pattern, इसको हम कहते हैं cercinate vernation, okay. So the important ferns, class Felicini में जो most important ferns हैं, these include the Bryopteris, Pteridgium, Adiantum and Pteris. So अब हम study करेंगे जी Adiantum. Adiantum का life cycle detail में, that is very very much important. So first of all, the diploid sporophyte produces large number of sori,
ठीक है, एंड द सॉरस, ईच सॉरस, द सिंगुलर सॉरस, इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्पोरेंजिया covered by the false indusium. That one is the covering of the leaves. Okay, and the leaves bearing sporangia are called the sporophylls. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. Phyll means leaf and sporo means sporangia bearing leaves are known as the sporophylls. Okay, so हमारे पास यहाँ पे ये एक स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर हमें डिटेल में शो किया गया है. इसको हम देखते हैं. दिस वन इज द स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट में ये एक स्पोरेंजिया है. ओके, सो एक स्पोरेंजियम की अगर हम बात करें तो स्पोरेंजिया की शेप, दिस वन इज स्लाइटली फ्लैटेंड बाइकन्वेक्स बॉडी, एंड inside the sporangia the haploid spores are formed by the reduction division, means by the process of meiosis, and now these spores are going to be converted into the gametophyte. Okay, एंड किस तरीके से ये रिलीज होंगे स्पोर्स इस स्पोरेंजिया से. स्पोरेंजिया के दो पार्ट्स हैं. एक तो हमारे पास जो है वो एक मार्जिनल रीजन होता है जिसको हम कहते हैं जी एन्यूलस, और एक है स्टोमियल रीजन. ठीक है, ये एज किनारे पे प्रेजेंट होता है. सो स्टोमियम, जो एन्यूलस सेल्स होते हैं, दे आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट एंड द स्टोमियम सेल्स आर गोइंग टू ब्रेक. सो इन दिस वे द स्पोर्स आर गोइंग टू बी रिलीज्ड आउट ऑफ द स्पोरेंजिया, एंड देन स्पोरेंजिया जो है दे विल जर्मिनेट, सॉरी स्पोर्स जो हैं दे विल जर्मिनेट इन गैमेटोफाइट. तो गैमेटोफाइट को अगर हम देखें, दिस वन इज द प्रोथैलस. ओके, तो गैमेटोफाइट जो है ये ऑटोट्रॉफिक है, स्मॉल है, फ्लैट है, हार्ट शेप्ड है, एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम. ओके, एंड इट इज हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड ऑन द सॉइल, और इसकी लोअर साइड पे राइजोइड्स हैं जिनकी हेल्प से ये जमीन से, सॉइल से अटैच होगी. ठीक है, फिर हमारे पास जो प्रोथैलस है मोनोएशियस है, यानी इस एक के अंदर ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं. लाइक द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर द एंथ्रीडिया एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर आर्चिगोनिया. तो एंथ्रीडिया में स्पर्म्स और आर्चिगोनिया में एग्स बनते हैं. ठीक है, एंड नाउ दी स्पर्म्स आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द आर्चिगोनिया टू फर्टिलाइज द एग, टू सिंथेसाइज द जाइगोट, टू मेक द जाइगोट. अब इस आर्चिगोनिया के अंदर ही जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा बाय द डिवीजन, एंड देन इससे स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट होगी. ओके, सो दिस वन इज द लाइफ साइकिल ऑफ द एडियंटम. नाउ विल डिस्कस अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द लीफ. तो लीफ की इवोल्यूशन को अगर हम देखें डिटेल में. ओके जी, सो द इनिशियली जो हमने लाइकोप्सिडा में लीव्स देखे, दे वर स्मॉल. ठीक है, दे वर माइक्रोफिल्स, स्मॉल लीव्स थे, एंड इनमें सिंगल अनडिवाइडेड वेन प्रेजेंट थी. एज यू कैन सी हियर, दिस वन इज द माइक्रोफिल, स्मॉल लीव है और सिंगल अनडिवाइडेड वेन है. ठीक है, और मेगाफिल, मेगाफिल एक लार्ज लीव है. इसमें जो बिल्कुल सेंटर में वेन प्रेजेंट है, this is going to be divided, and after that it will further subdivide to form a network of the veins. तो इस तरह का जो लीव है उसे हम मेगाफिल कहते हैं. ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से माइक्रोफिल्स आर गोइंग टू इवॉल्व इन मेगाफिल्स. So megaphyll leaves start developing from the small leaves about 350 million years ago, and कंप्लीट जो है वो इवोल्यूशन कब हुई, विद इन 15 to 20 मिलियन ईयर्स. ये कंप्लीट टाइम है, टाइम पीरियड है जिसमें माइक्रोफिल्स से मेगाफिल्स जो हैं वो बने. अब हम इसका इवोल्यूशन का प्रोसेस देखेंगे जिसमें कुछ तीन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. सो द फर्स्ट वन इज द ओवरटॉपिंग. तो ओवरटॉपिंग क्या है जी? In this step, one of the dichotomous branches overgrow due to the faster growth, and its counterpart grow with slower rate becomes lateral branch. यानी इसमें क्या होता है कि इनिशियली इस तरीके से एक ब्रांच बनना शुरू होती है, कुछ ब्रांचेस जो हैं वो काफ़ी एक्स्ट्रा ग्रो कर जाती हैं और कुछ छोटी रह जाती हैं. सो इक्वल ब्रांचेस जो है वो यहाँ पे ग्रो नहीं करती इस तरीके से, एज यू कैन सी हियर. ठीक है, कि अनइक्वल ब्रांचेस बन जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं ओवरटॉपिंग. आफ्टर दैट देयर इज प्लेनेशन. प्लेनेशन में क्या होता है कि जो अनइक्वल ब्रांचेस हैं, दिस अनइक्वल ब्रांचेस आर गोइंग टू अरेंज इन सिंगल प्लेन. ठीक है, तो इसमें द ब्रांचेस बिकेम इनटू द सिंगल प्लेन और फ्लैट. सो इसको हम कहते हैं प्लेनेशन. एंड आफ्टर दैट हमें नजर आ रहा है कि इन वेन्स के दरमियान किसी किस्म का कोई सपोर्टिंग टिश्यू प्रेजेंट नहीं है. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वेबिंग. तो वेब कहते हैं जाल को. अब यहाँ पे क्या होगा कि इन वेन्स के दरमियान जो है
वो पेरेन्काइमेटस टिश्यू जो है वो बनना और डेवलप होना स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से एक हमें जो नेटवर्क ऑफ वेन्स है वो एक लीफ की फॉर्म में नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो जिसे हम कहते हैं वेबिंग, ठीक है, ताकि इन वेन्स को आपस में फ्यूज किया जा सके। तो द पेरेन्काइमेटस सेल्स आर गोइंग टू फ्यूज दीज वेन्स विद ईच अदर, ओके। सो लीफ नाउ लुक्स लाइक वेब्ड फुट ऑफ द डक। तो आफ्टर द वेबिंग जो लीफ है हमें वो एक जो डक है उसके वेब्ड फुट की तरह नजर आना देना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द इवोल्यूशन ऑफ सीड। ओके जी, सो what is seed? First of all, you need to know that what is seed. So seed may be defined as the fertilized ovule, ठीक है। एक जो ओव्यूल जब उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके इर्द गिर्द इंटेग्यूमेंट्स यानी कवरिंग्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, और इसको हम कहते हैं जी कि अब सीड की फॉर्मेशन हो गई है, या इसको हम कह सकते हैं इंटेग्यूमेंटेड इंडेhiscent मेगास्पोरेंजियम हैविंग एन एम्ब्रियो, यानी एक मेगास्पोरेंजियम। एंड वी नो दैट फ्रॉम द मेगास्पोरेंजियम से बनती है फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट से फिर बनता है हमारे पास जी एग्स, ठीक है। और उसी से ही फिर कंप्लीट देन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद इट्स गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द एम्ब्रियो, ओके। So seed producing plants are called the spermatophytes. So this definition is also very much important. Seed producing plants are known as the spermatophytes, okay. Spermatophytes dominated over the non-spermatophytes, यानी इनको हम seeded plants कहते हैं, and seeded plants are most abundant on the planet Earth. So the evolution of the seed occurred about 390 million years ago, okay. And first seed appeared over the land about 365 million years ago. तो जो evolution है वो 390 million years ago complete हो गई seed की, और जो है वो फर्स्ट सीडेड प्लांट कब अपीयर हुआ, आज से 365 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। Now there are some steps that are involved in the evolution of the seed. First one is evolution of heterospory, then retention and germination of megaspore in megasporangium, then development of protective layers around the megasporangium, then is the reduction of single megaspore inside the megasporangium, then development of embryo sac within the sporangium, then modification of the distal end of megasporangium to receive the pollen grain. Okay. So first of all, there is evolution of the heterospory. In this case, there are two types of the spores that are going to be produced. Okay, so अगर हम देखें फिलिसिनी को, फॉन्स को, ठीक है, तो इनमें जो है वो हमने देखा सिलेजिनेला में दो तरह के स्पोर्स बन रहे हैं, लाइकोप्सिरा में। इसके बाद एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं। तो ये सब जो है ये हेट्रोस्पोरस प्लांट्स हैं। इनमें दो तरह के स्पोरेंजिया होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर बनेगा, एंड माइक्रोस्पोर इज गोइंग टू बी डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर बनेगा, और मेगास्पोर इज गोइंग टू बी डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब यहाँ पे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म से ऑनवर्ड जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं वो अलग अलग होना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। यानी अब गैमेटोफाइट्स भी दो तरह की बनेंगी। नेक्स्ट स्टेप इज रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन मेगास्पोरेंजियम। तो एज वी नो कि जब माइक्रोस्पोर बनता है तो माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनती है, और मेल गैमेटोफाइट में जो स्पर्म्स बनेंगे वो बाहर रिलीज हो जाएंगे। लेकिन इस केस में मेगास्पोर के केस में जो मेगास्पोर है वो बाहर रिलीज नहीं होगा, और जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगी वो विद इन दैट मेगास्पोरेंजियम ही बनेगी, ठीक है। ओके जी, सो नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड द मेगास्पोरेंजियम। तो हमारे पास एक तो बिल्कुल इनर साइड पे मेगास्पोर, फिर उसके बाहर बनता है मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। एंड देन मेगास्पोरेंजियम के अराउंड ये इंटेग्यूमेंट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि ये मेगास्पोर और उसके बाहर मेगास्पोरेंजियम, और उसके बाहर ये प्रोटेक्टिव लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। सो नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड दी मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ द सिंगल मेगास्पोर इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। तो जब मेगास्पोरेंजियम में पहले एक मेगास्पोर मदर सेल होगा, और उसकी मियोसिस के बाद 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, और उन 4 मेगास्पोर्स से 4 गैमेटोफाइट्स बनती हैं, ठीक है। और अगर ये 4 गैमेटोफाइट्स बन जाएं एक ही जगह पे, तो दे आर गोइंग टू compete विद ईच अदर फॉर द फूड एंड फॉर द स्पेस।
तो 3 गैमेटोफाइट्स अबॉर्ट हो जाएंगी और सिर्फ एक ही गैमेटोफाइट सर्वाइव करेगी ताकि उसमें गैमीट्स बने, उसमें एक गैमीट बने, एग बने, ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक विद इन द स्पोरेंजियम। तो इस एम्ब्रियो सैक कब बनता है? जब मेगास्पोर इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द यू कैन से मेगास्पोर इज गोइंग टू बी डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट विद इन दैट मेगास्पोरेंजियम। तो इसको हम कहेंगे कि ये एक एम्ब्रियो सैक बन चुका है, यानी अब इस फीमेल गैमेटोफाइट में फंक्शनल एग बनेगा, ठीक है, ताकि उसकी फर्टिलाइजेशन हो सके। So single megaspore inside the megasporangium is retained inside the megasporangium to germinate into the egg containing female gametophyte. So this is known as the embryo sac. Okay. Now next one is the modification of the distal end of megasporangium to receive the pollen grain. ठीक है, तो हमारे पास ये जो megasporangium का distal end है, it's going to be modified. megasporangium का ये जो distal end है, it's going to be modified to synthesize the point where the pollen grain, from where the pollen tube will be formed. Okay. Now the importance of the seed. So seed provides maximum protection to a developing embryo under the unfavorable terrestrial environment. Seed helps in the dispersal of the plants. Seed habit was great success and jump to allow the plants to live on the land permanently. Okay. Now we are moving towards the class Gymnospermi. Okay, so gymno means naked and spermy means seed. So these are naked seeded plants. Remember one thing कि इनमें ovaries जो है वो develop नहीं होती, ठीक है? So these are naked seeded plants. They are found in moist, cool and hilly areas, formed about 1/3 of the world's forest, ठीक है? Found worldwide, and they are having heteromorphic alternation of generation. Their sporophyte is dominant, and there are two types of the spores, micro and megaspores. Okay, and ovules are naked and formed over the exposed surface of the megasporophylls. ठीक है, so this one is most important point, जिसकी बेस पे इन्हें हम naked seeded plants कहते हैं कि इनके जो ovules हैं वो megasporophylls यानी जो बड़े लीव्स हैं उनकी सरफेस पे पड़े होते हैं मेगास्पोरोफिल के ऊपर मेगास्पोरेंजियम में फिर हमारे पास मेगास्पोर बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसमें बनेगा ओव्यूल, और उसकी फर्टिलाइजेशन के बाद इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द सीड, और ये सीड नेकेड होगा जिस मेगास्पोरोफिल की सरफेस पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। दे आर फ्रूटलेस एंड सीडेड प्लांट्स, ठीक है, सीडेड प्लांट्स हैं लेकिन फ्रूटलेस हैं, इनमें फ्रूट नहीं बनता बिकॉज इनमें ओवरी नहीं बनती, ठीक है। So gametophyte is less conspicuous. It is permanently retained in ovule. Examples include the cycas, pinus, taxus, pisces, cedrus, and ginkgo. Okay. So the gymnosperm or the pinus life cycle. So we'll discuss about the pine plant life cycle. Pine plant is a conifer plant और जो मेन बॉडी है इसकी जो स्पोरोफाइट है। अब इसमें ये जो पाइन प्लांट है ये हेट्रोस्पोरस है, दो तरह के स्पोर्स बनते हैं और इनमें हमारे पास जो है वो माइक्रो और मेगा स्पोर्स हैं, एंड माइक्रोस्पोर्स आर गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगा स्पोर्स आर गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड इन मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। और प्लांट में दो तरह की कॉन्स हैं, मेल कॉन्स और फीमेल कॉन्स, ठीक है। सो मेल कॉन्स को अगर हम देखें, सो दीज आर स्मॉल एज यू कैन सी हियर, ये कॉन्स हैं, ठीक है, दीज आर दी कॉन्स। तो ये कॉन्स हैं हमारे पास, तो हमें इन प्लांट्स पे अक्सर देखने को नजर आ जो है वो दिखाई देती हैं हमें। ओके, सो दिस वन इज द ओव्यूलेट सीड बियरिंग कॉन, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमारे पास सेकंड है कॉन, ये मेल कॉन्स स्मॉलर हैं, ये फीमेल कॉन्स लार्जर हैं। So male cones are small in size. They are produced in clusters, and the male cone consists of microsporophylls, and microsporophylls contain this one is the male cone. Male cone contain the microsporophyll, and microsporophyll contain the microsporangia. Microsporangia contain the microspore, and microspore is going to develop into the male gametophyte. Okay, and now
in the male gametophyte. The male gametophyte, after synthesizing the sperms, it's going to be converted into the pollen grain. So such a microspore of the seed plants that contains the microgametophyte, including the gametes, is called the pollen grain. यानी एक माइक्रोस्पोर जो कि कन्वर्ट हो चुका हो मेल गैमेटोफाइट में और मेल गैमेटोफाइट में बन चुके हों गैमीट्स, तो इसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन. ठीक है. नाउ अब हमारे पास जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके पास विंग्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो एज यू कैन सी हियर पोलन ग्रेन के पास विंग्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो जो है वो फ्लाई ओवर कर सकें. ठीक है. विंड के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकें. So gymnosperms have evolved this totally new mechanism of transfer of male gamete to female gametophyte that is independent of water. Now the female cones are large and conspicuous. As you can see here, ये female cones हैं, these are larger ones. These are the smaller ones, male cones, and these are the larger ones, female cones. ठीक है. Female cones में क्या होता है हमारे पास spirally arranged scales हैं और megasporophylls हैं. Female cones are much woody in nature. ठीक है. तो मेगास्पोरोफिल्स को अगर हम देखें तो मेगास्पोरोफिल्स में मेगास्पोरेंजियम है. ठीक है. मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर बनता है और 4 मेगास्पोर्स में से एक मेगास्पोर सर्वाइव करेगा. दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट एज वी कैन सी हियर. ठीक है. एक फीमेल गैमेटोफाइट बनेगी और उसमें फिर एक एग बनता है. तो दिस फीमेल गैमेटोफाइट कंटेनिंग द ओव्यूल इज नोन एज द एम्ब्रियो सैक. ओके. अब हमारे पास क्या है जी. नेक्स्ट हम देखते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट में जो है वो आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता है और आर्चिगोनिया में फिर एग बनेगा. आफ्टर दैट दिस वन वुड बी नोन एज द एम्ब्रियो सैक. तो अब हमारे पास जो पोलन ग्रेन्स हैं दीज आर मोटाइल. दे विल फ्लोट ओवर द सर्फेस ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर्चिगोनिया ताकि उसमें जो एग है उसको फर्टिलाइज कर सकें. फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा. ठीक है. दिस एम्ब्रियो is going to divide or grow within the same archigonia. Okay. And only few pollens are able to germinate to form the pollen tubes through which male gametes are transferred to the embryo sac for fertilization. So after fertilization the ovule becomes the seed. तो fertilization के बाद ovule जो है वो seed में convert हो जाएगा. And then when these seeds are going to be sown, they are going to be converted into the sporophyte. Okay. Now the class Angiospermi. So अगर हम class Angiospermi को देखें, so this term refers to the enclosed seeded plants. Angio means enclosed and spermi means seeded. So these are enclosed seeded plants. Okay. There are about 360,000 species out of plants, out of which 235,000 species are of the angiosperms. That's why they are covering much area on the planet Earth. So these are heterosporous plants and they are highly evolved and they produce the flowers, fruits and seeds. So angiosperms हमारे पास ये यूनिक प्लांट्स हैं जिनमें सीड्स भी बनते हैं, जिनमें फ्रूट्स भी बनते हैं और जिनमें फ्लावर्स भी बनते हैं. ठीक है. तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंजियोस्पर्मी की. So they fertile leaves are folded to form the ovaries. तो जो हमारे पास स्पोरोफिल्स थे, ठीक है, स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स हैं, वो फोल्ड हो जाएंगे ताकि ओवरीज बने और फिर उन ओवरीज के अंदर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट और उसके अंदर फिर एग की सिंथेसिस होगी. So the fertilized ovary change into the fruits and they are present in all habitats. Example includes the water lily, wild geranium and Indian pie. Okay. Now there is the life cycle of angiosperms. So angiosperms have the life cycle that shows the alternation of generation between the diploid sporophyte and haploid gametophyte. Okay. And the male and the female gametophytes live within the sporophytes. Okay. तो हम यहाँ पे एक जनरल सा स्केच देखते हैं. ये फ्लावर है and then in the flower there are the male and the female reproductive parts and from the male and the female reproductive parts the gametes are going to be synthesized and after the fertilization of the gametes the next generation is going to be formed. So first of all, development of the male gametophyte.
So the male gametophyte, in which the pollen grains are going to be formed. So these pollen grains will be synthesized inside the anthers. So first, meiosis produces the 4 haploid spores, as you can see here. The meiosis is going to make the 4 haploid spores. Okay. Now, next one is the female gametophyte. So female gametophyte develops inside the carpel of the flower. ठीक है, तो ये हमारे पास carpel, ये female reproductive part है. तो female gametophyte इसमें develop होगी. ठीक है, so ovules, these are the future seeds. So they are developed or enveloped in a protective ovary, the future fruit. ठीक है, तो ovules are the future seeds, and these ovules are enveloped in protective ovary. So ovary is the future fruit. तो ये हमारे पास ovule है, इस ovule से seeds बनेंगे, और ये ovary है, इस ovary से fruit बनेगा. ठीक है. Now, a single diploid cell goes through meiosis to produce the 4 haploid cells. तो यहाँ पे हमारे पास एक single diploid cell होगा, megaspore, that is going to undergo meiosis to produce the 4 haploid cells. Okay. And now cell walls form around the 6 of the 8 nuclei, और इनमें 8 total nuclei present होते हैं, and one of these 8 nuclei near the base of the gametophyte is the nucleus of the egg. तो इन 8 nucleus में से एक nucleus जो है वो egg का nucleus है. This egg is going to be converted into the zygote after the fertilization. Okay. सो पॉलिनेशन की अगर हम बात करें, तो पॉलिनेशन जो है इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स टू द फीमेल पोर्शंस ऑफ द फ्लावर. तो एंजियोस्पर्म्स में जो पॉलिनेशन होती है वो विंड के जरिए, यानी हवा के जरिए भी हो सकती है, या एनिमल्स के जरिए भी, कि एनिमल्स की बॉडी के साथ पोलन ग्रेन्स अटैच हों और एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो सकें. ठीक है, तो एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स हैव द वैरायटी ऑफ अडेप्टेशंस लाइक द ब्राइट कलर्स, स्वीट नेक्टर टू अट्रैक्ट एंड रिवॉर्ड एनिमल्स. तो जो एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, इनकी पॉलिनेशन एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, वो मोस्टली ब्राइट कलर्स वाले प्लांट्स होते हैं, ताकि जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होके आएँ, और वही रीज़न बने इनकी पॉलिनेशन का. ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो कुछ इंसेक्ट्स वगैरह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एनिमल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द पॉलिनेशन प्रोसेस. ओके. So next is the fertilization. So if the pollen grain is going to land on the stigma of the flower, ठीक है, ये हमारे पास flower का stigma, style and ovary, these are the 3 parts of the female reproductive structure. So stigma के ऊपर जब गिरेंगे हमारे पास pollen grains, तो stigma और फिर style से होते हुए they are going to reach to the ovary. Okay. So now there is the double fertilization process. So what is double fertilization? This one is the female reproductive part, the stigma, style and the ovary. और ovary के अंदर जो है वो हमारे पास nuclei, total 8 nuclei हैं, और जो base वाला एक nuclei है, this one is the nuclei of the egg. ठीक है, so this one is the egg, और total हमारे पास यहाँ पे remaining 7 nuclei हैं. ठीक है, ये 2 हैं, these are known as the polar nuclei. Okay. So double fertilization is a special process found in the angiosperms. और इसमें होता क्या है, इन दिस केस ये जो हमारे पास पोलन ग्रेन्स हैं, दीज आर हैविंग 3 न्यूक्लियाई. तो जो 2 न्यूक्लियाई हैं पोलन, जो हमारे पास पोलन ग्रेन्स हैं, इनमें एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस. सो इट इज गोइंग टू मेक द पोलन ट्यूब, ताकि पोलन ट्यूब से होते हुए जो बाकी 2 गैमीट्स हैं वो एंटर हो सकें इस ओवरी में. ठीक है, और एक उनमें से जो गैमीट होता है, इट इज गोइंग टू फर्टिलाइज दिस एग to make the zygote, और जो second gamete होगा, it is going to fertilize this diploid nuclei or the polar nuclei to make the triploid endosperm. ठीक है, so in this the 2 male gametes fuses with the 2 cells simultaneously. तो जो 2 male gametes हैं, एक पोलन ग्रेन में 3 मेल गैमीट्स हैं, एक जो है उसे हम ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं, ये पोलन ट्यूब बनाने में इन्वॉल्व होगा, एज यू कैन सी हियर. तो पोलन ट्यूब बनने के बाद 2 जो हमारे पास गैमीट्स हैं, दे आर गोइंग टू एंटर इन द ओवरी. ठीक है, इसमें से एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा एग से, ताकि डिप्लॉयड जाइगोट बने. सो यू कैन सी हियर, एक गैमीट एग से फर्टिलाइज करेगा, ताकि दीज आर द 2 गैमीट्स, वन इज गोइंग टू फर्टिलाइज दिस एग ताकि डिप्लॉयड जाइगोट बने, and this second one is going to fertilize this polar this fusion nuclei. Okay, diploid fusion nuclei, ताकि इससे triploid structure बन सके, that is the endosperm. ठीक है, तो 2 न्यूक्लियाई हैं हमारे पास, 2 गैमीट्स हैं. ठीक है, टोटल एक पोलन ग्रेन में 3 गैमीट्स हैं,
एक जो है वो पोलन न्यूक्लियाई, एक जो है वो हमारे पास पोलन ट्यूब न्यूक्लियाई है ताकि पोलन ट्यूब बन सके, ठीक है। और एक गैमीट जो है वो एग को फर्टिलाइज करेगा फॉर मेकिंग जाइगोट दैट इज गोइंग टू डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, और दूसरा गैमीट जो है ये फर्टिलाइज करेगा जी फ्यूजन न्यूक्लियस को, ताकि ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल बन सके एज यू कैन सी हियर, क्योंकि दो ऑलरेडी होते हैं उसके पास न्यूक्लियस और थर्ड जो है वो इस मेल गैमीट से आ जाएगा, तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनेगा, ठीक है। और इस एंडोस्पर्म का काम होता है जी कि इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करना, ठीक है। Now the classification of the angiosperms. So the angiosperms, these are divided into two subclasses, monocotyledons and dicotyledony. मोनोकोटिलेडनी ये वो हमारे पास क्लास है जिसमें एक ही कोटिलेडन है, ठीक है, सीड्स में। और डाइकोटिलेडनी ये वो है जिनमें दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, दो पार्टीशंस हैं, पार्ट्स हैं सीड्स के, ठीक है। So the plants having the having one cotyledon, these are known as monocots, or the plants having the two cotyledons are known as dicots. Okay, तो इनके जो कुछ most important characteristics हैं, these have been mentioned here. इनको अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल this one is this series is for the dicot plants and this series is for the monocot plants. सबसे पहले है नंबर ऑफ कोटिलेडन्स। तो डाइकोट्स में एज यू कैन सी हियर दो पार्ट्स हैं सीड के, ठीक है। डाइकोट्स और मोनोकोट्स में एक है। नंबर ऑफ पेटल्स और सेपल्स, तो हमारे पास तो डाइकोट्स हैं, उनमें 4 to 5 पेटल्स और सेपल्स हो सकती हैं या मल्टीपल, और जो हमारे पास मोनोकोट्स हैं उनमें 3 सेपल्स या पेटल्स हो सकती हैं या मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। फिर हमारे पास जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं, इन केस ऑफ मोनोकोट्स ये स्कैटर्ड हैं, इन केस ऑफ डाइकोट्स ये बंडल्स की फॉर्म में, रिंग्स की फॉर्म में है, ठीक है। फिर वेन्स अगर हम देखें तो मोनोकोट्स में पैरेलल विनेशन है, और जो हमारे पास डाइकोट्स हैं इनमें सर्सिनेट वर्नेशन है, यानी यहाँ पे नेटवर्क रेटिकुलेट विनेशन है, नेटवर्क प्रेजेंट होता है वेन्स का। अगर हम वुड की बात करें तो हमारे पास जो मोनोकोट्स हैं वो हर्बेशियस हैं, और डाइकोट्स में वैरायटी है, हर्बेशियस भी हो सकते हैं और वुडी भी, ठीक है। अगर हम सिमेट्री देखें फ्लावर की तो दोनों में रेगुलर और इरेगुलर सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। इन केस ऑफ यूनाइटेड पेटल्स, ठीक है, यानी हम गैमोपेटैलस कंडीशन की बात करें तो या सेपरेट होंगी पेटल्स या यूनाइटेड होंगी, तो दोनों में कुछ स्पीशीज पे वेरी करता है, स्पीशीज पे डिपेंडेंट है। कुछ में अगर आप दोनों को देखें, मोनोकोट्स को डाइकोट्स को, तो मोनोकोट्स में भी जो पेटल्स हैं वो फ्यूज्ड भी आपको नजर आ रही हैं, गैमोपेटैलस, और सेपरेट पेटल्स भी हैं। इसी तरीके से डाइकोट्स में फ्यूज्ड पेटल्स भी हैं और सेपरेट पेटल्स भी हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फीमेल फ्लावर पार्ट्स की, ठीक है, यानी ओवरी की बात करते हैं, तो हमारे पास डाइकोट्स में ओवरी सुपीरियर भी हो सकती है और इन्फीरियर भी। सिमिलरली मोनोकोट्स में भी ओवरी जो है वो सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है, ओके। So this was the difference between the monocots and the dicots. So we have done with this kingdom Plantae in detail. Hopefully you would like it, and inshallah we'll meet up with the next video. Until then, Allah Hafiz.